सो इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। In this class, we will study three topics: dipole moment. This is the vector quantity by which we define the dipole. Electric dipole को define करने के लिए we use a vector quantity that is called as dipole moment. Second thing, we will study electric field due to an electric dipole, right? Third thing, we will study कि dipole in a uniform external electric field, ठीक है। तो starting from the very first thing कि what is electric dipole, ठीक है। An electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by some small distance, right? They are pair of equal and opposite charges, equal in magnitude but opposite in nature. So one is plus q and the another one is minus q. These are two charges and they are separated by some small distance. And in general, in most of the classes, we take this charge as this separation as 2a, है ना? So this is the separation that we take as 2a. So this 2a is the separation between these two point charges. One is positive q, another one is minus q. And you have to remember that this separation will always be 2a. When we will be deriving formulas, na, so you should keep in mind that the separation between the charges is 2a. Otherwise, you will make mistakes in the final answers. Hai na? So you have to remember that separation is always 2a. Yeah, Tanishka. जस्ट मैं ए क्यों नहीं लिया इनके डिस्टेंस ए क्यों नहीं लिया वो अभी वो yes, पता sir. चलेगा। अभी आप इसको याद करो कि इनका सेपरेशन हमेशा 2a लेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूलाज इजी वे में डिराइव हो जाते हैं। फॉर्मूलाज में ना फ्रैक्शंस नहीं आते अगर इसको हम 2a ले लेते हैं तो, इसलिए फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर कि 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। बोलो। ऐसे कोई भी डेरिवेशन में अगर फॉर्मूला मतलब कैलकुलेशन वैसी अजीब सी हो रही है तो फिर हम कर सकते हैं ऐसे कोई भी चीज को बदल कर जैसे हाँ लेंथ है हाँ उसको कर डबल सकते कर हो, बस ट्रिपल आपको जैसे ध्यान होना चाहिए कि स्टार्टिंग कहाँ से किया है। जैसे हम लोग कई बार मैथमेटिक्स के भी एडवांस कैलकुलस के एडवांस प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे अज्यूम नहीं कर लेते लेट एक्स बी टेन थीटा, देन उसको टेन थीटा yes, के हिसाब से सॉल्व करके फिर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ऐसे कर लेते हैं ना। तो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस वी डू दिस वे इन ऑल ऑफ द मैथमेटिकल पार्ट। तो जैसे 2x है, 2a हमने इसलिए लिया बिकॉज द फाइनल आंसर्स व्हाइल डिराइविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल अदर रिलेशनशिप्स, तो फाइनल आंसर आता है फ्रैक्शन नहीं आता, उसमें होल फिगर्स आते हैं। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर कि दीज two equal and opposite charges separated by some small distance is called as electric dipole, और by convention इनके बीच का जो distance है, the distance between these two point charges is 2a, ठीक है। okay sir. अब how to define an electric dipole? Electric dipole is defined with the help of a vector quantity that is called as dipole moment. So write that this thing dipole moment, and dipole moment is something that is dipole moment is a vector quantity by which we define इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर डायपोल मोमेंट वेक्टर? इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। कोई भी एक चार्ज उठा लो, क्या मैग्नीट्यूड है बेटा? क्यू है, तो क्यू रख दिया मैंने, एंड सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2a। so this is called as dipole moment. It is equal to magnitude of either charge, that is equal to q, and separation between these two charges is 2a. So q into 2a is called as magnitude of dipole moment vector. And if we have to write, because it is a vector quantity, so if we have to derive the direction also, so when we write it in the vector form, we will write it as p is equal to q into 2a p cap. So what is this p cap direction? This is the direction of dipole moment, right? अब पूछोगे सर ये पी कैप है तो क्या है, तो बेटा देखो द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो whenever there is some dipole placed, है ना, there will be 2 point charges, one is negative, another one is positive. They are placed, you draw a line from minus q to plus q, and that will be the direction of p cap, right? So p cap is always from negative charge of the dipole to positive charge of the dipole, ठीक है। तो अभी आप ये फॉर्मूला लिख लो, p is equal to q into 2a p cap, और पी कैप क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये लिख लो, पी कैप इज द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। पी कैप इज द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। मंताशा बेटा, गायत्री, शिखा, if you can turn on your cameras, just switch on your cameras.
है ना, मेक अरेंजमेंट। तनिष्क, अगर आपका वीडियो अगर तिरछा भी आएगा तो चलेगा, जस्ट कीप योर फोन मोर कंफर्टेबल टू यू, है ना, उसको आप सीधा जैसे जहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन अच्छे से दिखे वैसे रख लो, आप तिरछे भी आओगे तो कोई टेंशन नहीं है, राइट। जिसके रूम में मंताशा, इफ द रूम इज डार्कर, switch on the lights beta and then switch on your camera. Shikha, you also, Gayatri, just try it. If the internet does not permit तो मैं आपको खुद से ही बोल दूंगा कि बंद कर लो, ठीक है। Just keep your cameras on. There is nothing to be shy of, है ना, there is nothing to be shy of. Everybody is at their home, तो no issues. कोई आएगा, पेरेंट्स ही तो आएंगे, कोई ऐसे थोड़ी कि पीछे से आगे तुम्हारे ऐसे कोई जानवर भैंस आगे ऐसे कर रही है ना, कोई ऐसा बंदर आगे थोड़ी करेगा ऐसे कैमरा में, ठीक है ना, इट्स ओके। तो राइट डाउन बेटा, Q is equal P is equal to Q into 2a P cap, and this P cap is the direction from negative charge to positive charge. Write it down and then we will solve a question based upon this thing. ठीक है, चलो अब ये बताऊंगा तुम्हें पोलर नॉन पोलर बाद में, पहले लेट्स ट्राई a क्वेश्चन, है ना, we will try a question. This is the question, read it and solve it. This is a question beta, read it and solve it. Just draw the diagram first. If you feel it confusing, just draw it. जैसा आपको दिखाई दे, just draw it and try to solve it. So 75 into 10 to the power minus 7. 75 into 10 to the power minus 7. I think your answer is correct बेटा, ठीक है। देखो, a system has two charges, Q and QB. These are equal in magnitude and they are opposite in sign. That means they form a dipole. Yes, electric dipole बनाएंगे, right? तो अब दोनों का लोकेशन आपको दिया है, the one is at point A, another one is at point B. ठीक है, let us draw. Let it be y-axis and let it be z-axis. Now the point A is at 0, 0, minus 15. So it will be lying on the y-axis at some point which is 15 centimeter below the origin. Yes, है ना? So this is 0, 0, minus 15, right? So this is point A. And there will be some point B which is at a height of 15 centimeter above the origin. So it is 15, 0, 0, 15, and this is point B. Now QA is placed at point A and QB is placed at point B. So the point A carries a positive charge. Yes, so here it is a positive charge and at point B it is negative charge. Yes, beta. So if I ask you what will be the direction of dipole moment, what will be the direction, beta? I have just told you. Mantasha, what will be the direction? कौन सा होगा? P cap direction अभी बताया था ना. What is the P cap direction? बताओ. From positive charge to negative या negative to positive? From negative charge to positive. Negative to positive. From negative charge to positive. तो we will start at point B. Point B से start कर और कहाँ पे ले जाएंगे? Point A पर. So this is the direction of dipole moment vector. I have already, ये हमें पता चल गया, ठीक है. So this is the P cap direction. So P cap direction कौन सा हुआ? Negative Z की तरफ pointing. और negative Z कौन सा direction होता है बेटा? Minus K cap direction. Yes. So it is the direction of dipole moment vector.
now we have to calculate the magnitude. So magnitude of dipole moment क्या होता है? P is equal to magnitude of either charge into separation between these two charges. Yes, so 2a is the separation beta. अब I will just substitute the value. What is the magnitude given as 2.5 into 10 to the power minus 7 coulombs. ऐसा यूनिट में था, as it is रख दिया. Now I multiply it with the separation. What is the separation beta? What is the 30. separation? 30 centimeters. 30. Yes. ठीक है. If I convert this into meters, I have to convert this into meters. So 30 into 10 to the power minus 2 meters. Now everything is in SI units. So we will calculate it. है ना, 2.5 into 30 is 75 into 10 to the power minus 9. So 75 into 10 to the power minus 9, or what will be the unit? Coulomb meter. Coulomb meter. Why? Because charge का unit क्या होता है? What is the unit for charge? Charges Coulomb. coulomb And this is separation distance meter. So coulomb meter is the SI unit for coulomb meter is the SI unit for dipole moment. डायपोल मोमेंट, है ना. ठीक है, तो इसमें वैल्यूज रख लेते हैं. तो अभी इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इफ आई ट्राई टू राइट, तो ये क्या आएगा? 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब मीटर. तो फाइनल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब मीटर. और अगर इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखें कि वेक्टर पूरा लिख दो, तो इट विल बी 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस के कैप और यूनिट कूलम्ब मीटर. ठीक है बेटा. तो देखो ध्यान दो आप लोग, गायत्री जस्ट फोकस की ये P को लिखा ना एज ए वेक्टर, तो साथ में आई हैव प्रोवाइडेड डायरेक्शन एज माइनस के कैप. एंड इफ आई वाज ओनली कंसर्न्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड पार्ट, तो मोड फंक्शन में वेक्टर को रखा, दैट मींस आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड. तो दैट इज 7.5 टू 10 टू पावर माइनस 8 कूलम्ब मीटर. ठीक है. ये बेसिक कंसेप्ट का आप है ना थ्रू आउट फिजिक्स ध्यान रखना कि व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, एवरी आंसर विल बी accompanied by the units also, है ना. तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगी, राइट. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, राइट. तो ये सब चीजें. तनिष्क ऑलराइट, ठीक है बेटा. Yes. आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन कैसे होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन राइट एंड थंब रूल से मिलेगा, ये सब चीजें पे हमें वी हैव टू फोकस, राइट. तो आपको ना बहुत सारी चीजें यू विल गेट टू नो, जस्ट यू रीड एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स इन अ वेरी easy way. So have you arrived at the answer, Mantasha? Are you able to solve this? Gayatri, Namrata, Shikha, Tanishq, solve हो गया बेटा? Yes sir. तो पेपर में आएगा तो कर दोगे? कर दोगे ना, ठीक है. चलो, तो हमारा आंसर आया 7.5 10 के बार. यहाँ पे गलत था तो मैंने करेक्ट कर दिया सोल्यूशन को. ठीक है, ओके. चलो एक और क्वेश्चन करेंगे. ये थोड़ा सा आपका दिमाग लगाने के लिए बोलेगा. जस्ट ट्राई इट एंड देन आई विल हेल्प यू डेफिनेटली. ठीक है, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा. इट इज नॉट डायरेक्टली बेस्ड अपॉन द थिंग्स दैट आई हैव टॉट, बट यू हैव टू डू सम लॉजिकल थिंकिंग, है ना. एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, सोचो. नम्रता बेटा, इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा, जस्ट स्विच इट ऑन, है ना. वी विल मेक ए हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑन द कैमराज फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. लो, अच्छा नम्रता ने शिखा ड्रॉप हुआ है. नम्रता, यस, है ना. When everybody is on camera, everybody is comfortable, है ना. सबको लगता है ठीक है यार, सब लोग तो कैमरा पे ही हैं, है ना. क्या फर्क पड़ता है? If you make it a habit, then it's natural. In the COVID times, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, केजी नर्सरी वाले, वो भी कैमरा पे आते थे. मैम को बोलते थे हाय मैम कैसे हो आप, सब बढ़िया. मैंने देखा इन सबको, है ना. तो जब वो लोग इतना सीरियसली क्लासेस ले सकते हैं, तो why can't we, है ना. देखो नम्रता ने हंसते हंसते वो ऑफ कर दिया कैमरा. ठीक है.
बेटा when we learn with the smiling faces ना, तो learning process becomes very easy and it is long lasting. जब हम हंसते हुए पढ़ते हैं, हैव यू एक्सपीरियंस ना, अभी तो आप लोग 12th में आ गए, कुछ टीचर्स होंगे जिनकी क्लास में आप लोग हंसते हंसते पढ़ते होंगे, यस, तो वो चीज़ें आपको अब तक याद होंगी, जिसमें मनहूस नींद के साथ पढ़ते होंगे, सब भूल जाते हैं, है ना। तो हमें हंसते रहना है, बस पढ़ते रहना है। कुछ समझ आया इस क्वेश्चन का, कैसे करोगे? मंताशा, तनिष्क, शिखा, गायत्री, कुछ आया बेटा समझ? चलो एक हिंट दे देते हैं अब आपको, अगर आपको समझ आ गया तो अच्छा है, नहीं तो हिंट दे देते हैं। देखो, ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 चार्जेस आर प्लेस्ड, ठीक है। So can we split this charge which is placed at point B into 2 equal charges of q magnitude, है ना। तो हम क्या करेंगे, I will not look it as 2q, I will look it as one is this positive q charge and another one is also a positive q charge. So they combine together to form 2q, right? Now I will look at the charge placed at point C, that is minus q. There will be a dipole moment due to this minus C and this red color wala q charge. There will be another dipole moment that is due to minus q placed at A and this blue color wala charge. Now there are two dipole moment vectors. We can calculate their individual values and these vectors are at an angle of theta. What is this theta beta? 60. Equilateral triangle है, तो this theta is 60 degree. Now what exactly is happening? If I translocate these vectors, तो क्या होगा? These are like this, कि one is acting in this direction, another one acting in this direction, and they have an angle of 60 degree in between them. So one, let us say one is P1, another one is P2. There are two vector quantities acting at an angle of 60 degree. Can we find out the resultant of these two vectors? That will be the net dipole moment. Yes. चलो find out करो Q1, P1, P2 का value. They have an angle of 60 degree in between them, and then solve this question. करो। हाँ जी, हो रहा है सॉल्व। तनिष्क कर पा रहे हो बेटा? तुम नहीं आया। कुछ नहीं चमका, नहीं आया। अरे P1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्या है सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस? सब बच्चे देखो, सब बच्चे, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच में डिस्टेंस कितना है? D. तो separation between the charges is D and magnitude of one charge is Q. So dipole moment vector P1 will be equal to, P1 का magnitude क्या होगा? QD. P2 का क्या होगा? P2 का QD. 2.
2 नहीं, 2 को भूल जाओ. Now this 2q is split into two equal charges, one of q and another one of q. They are paired with, one is paired with charge at point C, another one is paired with charge at A. तो दो डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स आ गए. Now in their individual magnitude is qd and qd, right? Now these two vectors are acting at an angle of 60 degree. बेटा थीटा आपका क्या है, 60 डिग्री है. अब बताओ, do you know how to add two vectors with the angle between them? क्या होता है? P net, if I want to write, it will be equal to under root of P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos theta, vector addition. ठीक है, ये याद नहीं आ रहा तुम्हें ये फॉर्मूला? तनिष्क देखा है कभी ये फॉर्मूला? Yes. गायत्री, have you used this formula before? नम्रता, नाताशा, Sir, 3q square d. अंडर रूट है ना? हाँ. So what will be the final answer? P net is equal to root 3 QD. Root 3 qd. है ना? Q and D will come out and root 3 will be there. So solve करो. P1 का value is QD. Have you understood now why P1 is QD? Because we have split this charge 2Q into two equal charges. We are looking it at as कि one is Q, another one is Q, है ना? तो दो dipole moment आ गए. Now they are acting at an angle 60 degree to each other. तो हम लोग इसमें वैल्यूज रख देंगे. We will substitute the values. तो P1 क्या है? QD squared. This is QD squared plus 2 into QD into QD into cos of 60. Cos 60 कितना होता है? 1/2. 1/2. So this 2 and 2 will cancel out and it will become under root of QD square plus QD square plus QD square. That becomes 3Q square D square. Now QD will come out because they are square na, they will come out of under root and we can write it as under root 3 QD. So P net is under root 3 QD. देखो, if you have doubt ask. गायत्री, देखो बेटा एक चीज बताऊं आप लोगों को, अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा होता ना तो यू टेंड टू लूज द कंसेप्ट. आप डाउट नहीं पूछते और फिर क्या करता है बच्चा पता है? दे गो इनटू हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, है ना? वो लिखता चला जाएगा. तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग द कंसेप्ट लर्निंग प्रोसेस. आपको समझ नहीं आ रहा अभी, बाद में भी नहीं आएगा वो. तो सबसे पहला क्या है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मेकिंग सो मैनी ऑफ द नोट्स, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, है ना? नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, तो चीज़ों को अभी समझ लो. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड कि हाउ वी हैव डन इट, तो अंडरस्टैंड इट, आस्क इट एंड लेट इट क्लोज नाउ एंड हियर ओनली, है ना? समझ आया तनिष्क? आ गया? Yes, sir. गायत्री, हैव यू अंडरस्टूड बेटा? यस और नो? गायत्री नहीं आया? Yes, sir. नहीं आया ना? चलो बताओ, हाउ वी सॉल्व दिस. गायत्री बताओ एक बार फटाफट. So by using the formula P1 square plus P2 square, we assume that P1 square is, we know that QD, and P2 square is QD, and by 2PQ square cos theta, the cos 60 degree value is 1/2, and we cancel out. So how did we assume QD? P1 is QD. How did we calculate it that P1 is QD? So we know that equilateral angle is 60 degree, and by 2QU we have split it by Q into Q, and we know that P is equal to that 1Q is yes, so we are assume QD. Okay, we are calculating QD na, कि P1 is magnitude of either charge into distance between the two charges. So magnitude is Q and separation is D because side of the equilateral triangle is D. So we calculated P1 as QD, P2 as QD. These are two vector quantities acting at an angle of 60 degree. So we use this cosine formula for adding two vectors, which is under root P1, which is A square plus B square plus 2AB cos theta. You will find this formula as A square plus B square plus 2AB cos theta, right? So we are substituting P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos theta, substituted the value of P1 and P2 as QD, and then calculated the final answer at under root 3 QD.
समझ आया? चलो, तो √3QD हमारा आंसर आ गया. Okay, now we will look at, we have understood कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस क्या था, we have calculated, right? तो अब हमने डायपोल मोमेंट का भी कर लिया कि एक चार्ज था तो ऐसे होगा, अब मल्टीपल चार्ज होंगे तो we can split that in like ways, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. तो ये हो गया. अब क्या करेंगे कि डायपोल की we will find out कि what will be the electric field due to इलेक्ट्रिक डायपोल. हमने सिंगल पॉइंट चार्जेस से कर लिया, मल्टीपल से कर लिया. अब हम करेंगे, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना. तो डायपोल इज नथिंग बट मल्टीपल पॉइंट चार्जेस. दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन. यस, so there are 2 possible ways. One is the any point which is present on axial line, है ना. तो axis of the dipole. So what is axis of the dipole beta? It is a line on which these 2 charges are present, है ना. The line passing through the 2 charges of the dipole is called as axis of the dipole. Yes, so blue color ka line is axis of the dipole. So if there is any point P located in on the axis of the dipole, it is called as axial point, है ना. So these are axial points. Let them be P1, P2, P3, है ना. So these are axial points. These are located on the axis of the dipole. Another one possibility can be that these points can be on the equatorial line. So this is the line passing through the center of the dipole and perpendicular to the axis of the dipole. ठीक है बेटा, इस line को बोलेंगे equatorial line. Any point on the equatorial line is called as equatorial point. Yes. Center of the dipole. What is center of the dipole beta? Let's look at it first. The center of the dipole is the point which is midway between the 2 charges, है ना. So it is a point which is A at a distance of A from negative charge and at a distance of A from the positive charge. Since the length of the dipole is 2A, we split the total length into 2 equal parts and the midpoint is called as center of the dipole. ठीक है. अब let's come to the point of electric field, है ना. So electric field due to axial points and electric field at axial points and electric field at equatorial points. So we will start with the axial points first. Let us focus on this diagram. So you see a electric dipole present here beta. Where is the dipole? This is the positive charge and a negative charge. They are separated by a distance of 2A. So this red color ka and blue color charge forms an electric dipole. So these are 2 equal charges separated by some distance. So we say it is electric dipole. Now on the axis of the dipole, there is a point P. There is a point P located on the axis of the dipole. So this is the point P. Point P located on the axis of the dipole. We want to find out the electric field on this point P beta. We want to find out the electric field on this point P. How can we find out? What we will do, we know the formula for net single electric field. Electric field due to a single point charge. Do we know the formula? Just What is the KQ formula by beta? R. F KQ upon by Q. R squared. Yes, F upon Q. So when we formulate to KQ upon R square. K is the value 9 into 10 to the power 9. 10 to the And 9. Q is the magnitude of source charge. Magnitude of charge. R is the distance of point P from that point charge. ठीक है. So if we focus on the point charge positive Q and point P. Yes beta. So what is the magnitude of charge is Q. K we know KQ upon R square. So R is the separation between the distance between the point charge and the point P. So we have to calculate this distance. What is this distance beta? Look at the geometry and give me the value of distance. R minus A. R minus A. Gayatri, Shikha, Namrata. देखो, this length of the dipole 2A is divided into 2 equal parts. A and then A. Why? Because the dipole ka center is at an equal distance from both the charges. Now the point P is at a distance of R from the center of the dipole.
so we know that this complete distance is r, this half distance is a, so we can find out the values, and we can find out the values of this distance as r minus a. So this becomes r minus a. Okay. Similarly, can we find out the distance of point P from negative charge also? What is the distance of point P from the negative charge, beta? R plus A R plus A. plus Yes. A. देखो, this R and this A combine together to form R plus A, है ना? So this is the distance of negative charge from point P. So we will use the formula for electric field due to these charges, है ना? When we are taking negative charge, we know that the distance is R plus A, KQ upon distance square. Similarly, for positive charge, we know distance is R minus A, KQ upon distance square. We have calculated the electric field at point P due to these two charges of the dipole. Now what we will do to find out the E net, the resultant, we will just add them together. These are vector quantities. We will do the vector addition, है ना? So on adding these two quantities, we will arrive at a formula which is KQ into 4AR upon R square minus A square whole squared, है ना? Geometrical simplification and all that we do, and then we arrive at this formula. Now we will further simplify it as, we will take 2K as common, then we will get Q into 2A, Q into 2A as another quantity in numerator, and we know that Q into 2A is magnitude of dipole moment, Q into 2A. Yes, beta, magnitude of either charge into separation. Yes. So Q into 2A is dipole moment. So what we will get finally, 2K PR upon R square minus A square whole squared. Q into 2A becomes P and 2K R remains as it is. So 2K into PR upon R square minus A square whole squared. So this is what we have arrived at a formula to calculate electric field on any point P which is located at the axis of the dipole, right beta? So point P is located at the axis of the dipole, and to find out the electric field at this point P, we have arrived at a formula, and this formula is 2kpr upon r square minus a square whole squared. Write down this formula beta. 2kpr upon r square minus a square whole squared, and write down that this is for axial points. So axial points. Yes, Tanishq. इन क्वेश्चनों में हमें गिवन होता है कि एक्सियल पॉइंट पे रखा है. हाँ, वो गिवन होगा. आपको कॉन्फ़िगरेशन समझाया जाएगा व्हेन यू विल बी ड्राइंग द पॉइंट ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सिस पे है कि इक्वेटोरियल पे है. ठीक है. So 2k PR upon under r square minus a square whole square. Write it down and write down कि this is for axial points. हो गया जी. यहाँ पे Yes, k sir. क्या है? k क्या है? What is k? 9 into 10 to the power 9, है ना? For free space it is 9 into 10 to the power 9. अगर कुछ और हुआ medium तो it will be 1 upon 4 pi epsilon. 1 upon dialect. है ना? 1 upon 4 pi epsilon, right? So P is dipole moment vector. Dipole moment vector. P is the dipole moment vector. Okay. R is the separation of point P from the center of dipole. Center of dipole से point P कितना दूर है? That is given by R. And A is called as half length of the dipole. Total length of the dipole is 2A. A is half length. ठीक है बेटा? अगर यहाँ पे देखो 2A ना लेते तो यहाँ पे A by 2 आ जाता तनिष्क. अगर वहाँ 2A लेंथ ना लेते तो यहाँ फॉर्मूला में A by 2 आ जाता. न्यूमरेटर में क्या होता? फ्रैक्शंस आ जाती. तो फिर कैलकुलेट तो फिर और दिक्कत होता है ना, कंफ्यूजिंग हो जाता. लेकिन आखिर में तो यही वाला आता फॉर्मूला. आखिरी में ये नहीं आता ना. ये क्यों आता? अगर वहाँ पे A लोगे तो अलग आएगा. ये फॉर्मूला अज्यूम करके निकाला गया कि फुल लेंथ इज 2A. Right. So 2k PR upon r square minus a square whole square. So this is for axial point. Let us solve a question. अच्छा, एक चीज और देखो. If the length of the dipole is represented by a value, है ना, 2 times of a. If the length of the dipole is very small in comparison to the distance of point r from the dipole, then we can neglect a in comparison to r, है ना. अगर ऐसा हो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ये बहुत पास में है, और पॉइंट P जो है वो बहुत दूर है,
ठीक है, तो क्या करेंगे, वी कैन नेग्लेक्ट दिस a value, a छोटा सा होगा, we can neglect a in comparison to r, so then this formula can be further simplified as 2kp upon rq. ठीक है, we will keep a as 0, so when we put a as 0 in this formula, what will be there, 2kpr upon r to the power 4, and r will be cancelled out and it will become 2kp upon r cube, only when the length of the dipole is very small in comparison to the distance of point p from the dipole, है ना. So then we can use this formula which is further simplified. ठीक है बेटा, तो if you have written them down, let's solve a question. Yes, sir. Okay, चलो, ready for a challenge. Let's start. Read this question बेटा and let's solve. करो, solve this one. अगर आंसर आ जाता तो हैंड रेज करना बेटा, है ना. शाबाश तनिष्क.
शिखा सॉल्व कर रहे हो बेटा? इजी है यार, इजी है। 5 मिनट ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें, 2 मिनट का सवाल है। तनिष क्या आंसर आया बेटा आपका? 1800। शिखा आप बेटा ना अपने ऐप को अपडेट करो, कई बार ना आप डिस्कनेक्ट भी हो जाते हो, कई बार आपको स्क्रीन ऑडियो का इशू आता है। गूगल मीट के ऐप को आप अपडेट कर लो एक बार, है ना, क्लास के बाद कर लेना चाहिए आज, ठीक है। अपडेट करना आता है ना, गो ऑन प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे गूगल मीट सर्च करना, अपडेट होगा तो अपडेट का ऑप्शन वहाँ दिख जाएगा। हाँ तनिष्क बोलो जी। 1800। 1800, चलो देखते हैं। आपने कुछ गड़बड़ किया, यू हैव नॉट कन्वर्टेड आई थिंक सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, शायद। देखो एक बार, किया? नहीं किया? यस सर किया। किया है, चलो देखते हैं। ठीक है बेटा, एक बार देखो जिनसे नहीं हो पा रहा। शिखा आप एक बार डिस्कनेक्ट करके बेटा दोबारा से कनेक्ट करो, शायद फिर दिखेगा स्क्रीन। या फिर एक काम करता हूँ, रुक जाओ, स्टे इन द कॉल, मैं एक बार स्क्रीन शेयर रोक के दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है शिखा, आप दिख रहा है स्क्रीन बेटा? नो शिखा नहीं दिख रहा, तो आप है ना एक बार एक काम करो, आप मीटिंग को लीव करो फिर ज्वाइन करो, फिर दिखेगा। देखो, 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम्ब बट अपोजिट इन साइन आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, 2 चार्जेस हैं 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा जिसको बोल दिया Q, और ये क्या है 1 माइक्रोकूलम्ब के बराबर। दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज जो कि -Q है, और उसका मैग्नीट्यूड है -1 माइक्रोकूलम्ब। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट a point distant 10 centimeter from the midpoint of axial line of the dipole। ठीक है, लिखा हुआ है देखो तनिष्क, on axial line of the dipole। ठीक है, 10 centimeter from the midpoint of the dipole on the axial line। ठीक है, तो axial line, let us draw an axial line from the center of the dipole। this point P is at a distance of 10 centimeters। ठीक है बेटा, if I ask you what is the value of A, what is the value of A बेटा तनिष्क? यस सर। What is the value of A? 1/2। है ना, 1/2। देखो, टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल हाँ इज सर ये टेकन गलत। एज, ये गलती करी ना आपने? यस सर। हाँ, टोटल लेंथ ऑफ द डायपोल इज टेकन एज 2a। तो मैंने बोला था आप भूलोगे, बार बार आई वाज रिपीटिंग इन दिस वे ओनली। आपने डाउट भी पूछा फिर भी भूल गए, देखो कितनी भूलने लायक चीज है। तो 2a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो a विल बी इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर हाँ जी। सर इसमें तो आर बड़ा है ए से, तो फिर शॉर्ट डाइपोल वाला लग जाएगा ना 2 kb बाय वो आर। नहीं लगाएंगे, बताते हैं आपको। देखो, हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल कितना है बेटा? ए इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर्स, है ना, और आर कितना है? आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। तो ये कितना परसेंटेज हुआ? ए इज एटलीस्ट 5% ऑफ आर, है ना, 5% है। ए इज 5% ऑफ आर, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे हम। नेग्लेक्ट करेंगे 1%, 2%, उससे भी कम वैल्यूज, तब हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो एरर्स में हमने क्या सीखा था 11th में?
ये 5% इज अ कंसिडरेबल पार्ट. इफ एरर इज इक्वल टू 5% तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती. 1 to 2% इज एक्सेप्टेबल, है ना. तो 1 हो या 2 हो या उससे कम होगा तो हम लेंगे. ठीक है. तो अभी देखो पॉइंट. जैसे हाँ जी. एक ही वैल्यू से अगर 0.001 ऐसा हो तो कर लेते हैं ना. हाँ बिल्कुल. अभी देखो एक क्वेश्चन आएगा, अभी अगला मैंने रखा हुआ है डेलिबरेटली वैसा क्वेश्चन जहाँ पे हम नेग्लेक्ट करके आपको दिखाएंगे. ठीक है. अभी नहीं करेंगे. ठीक है. ध्यान रखो सब बच्चे, ध्यान दो. देखो यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. ओके. फॉर्मूला क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का? फॉर्मूला क्या है? 2k PR by R² minus A². PR upon R² minus A² होल स्क्वायर्ड. ठीक है. यहाँ पे k का वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? k विल बी टेकन एज 9 into 10 to the power 9. और p का वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. हाउ वी कैन कैलकुलेट p? p is equal to magnitude of either charge into separation between them. तो मैग्नीट्यूड कितना है? 1 into 10 to the power minus 6 coulombs into सेपरेशन कितना है? 1 सेंटीमीटर into 10 to the power minus 2. तो ये क्या हो जाएगा? p will be 10 to the power minus 8 कूलम्ब मीटर, है ना. ओके. ऐसा यूनिट्स में आ गया. r we know r is equal to 10 into 10 to the power minus 2 meters, है ना. यस. और a हमारा क्या है? a is equal to 5 into 10 to the power minus 3 meters. ठीक है. तो अब हम इन सब वैल्यूज को रख देंगे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ e. तो वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ e एज e is equal to 2 into 10 to the power 9 into 10 to the 9 into 10 to the power 9 into p का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 10 to power minus 8 into r is nothing but 10 into 10 to power minus 2 divided by r square. कुछ गलती किया यार, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. डिवाइडेड बाय r का वैल्यू है 10 to power minus 1 और उसका स्क्वायर्ड 10 to power minus 1 का स्क्वायर्ड और माइनस a इज 5 into 10 to power minus 3 इसका स्क्वायर्ड एंड देन होल स्क्वायर्ड. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. इसको कैलकुलेट करो, आपका आएगा शायद 1.44 into 10 to power समथिंग. देखो एक बार ट्राई करके. यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. फटाफट करो, प्रैक्टिस करो यार. करते रहोगे ना तो ये इजीली यू कैन कैलकुलेट देम. तनिष्क आया बेटा आंसर? नहीं आया. 1.8 into 10 to power 5 आ रहा है. सही था आपका, बट वो यूनिट्स का दिक्कत आ गया ना. तो इसका फाइनल आंसर विल बी 1.8 into 10 to the power 5 और यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम. ठीक है. 1.8 into 10 to power 3 आया था पहले, वो उसमें सैंपलिंग को करने लगा. हाँ अब आ गया 5. ठीक है. यस सर. तो अब क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या क्या हमने कैसी वैल्यूज निकाली, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया चीजों को. आया समझ गायत्री, मंताशा? ठीक है. देखो कैमरा ऑन करके बैठने से ये फायदा होता है. देखो अभी तनिष्क कितना इजीली बात कर पा रहे हैं. मैं और तनिष्क, है ना, बहुत इजीली अनम्यूट करके फटाक से क्वेश्चन पूछा, फटाक से बता दिया. मुझे पता है कि आप ट्राई कर रहे हो, है ना, आपका पेन चल रहा है, मुझे दिख रहा है ना. ऐसा नहीं कि एसी चला के थोड़ा हल्का सा कंबल ओढ़ के पड़े हुए. ऐसा भी हो सकता था ना कि ठंडा कम का करके यार ठीक है सर पढ़ा रहे हैं, मैं एक आंख से पढ़ लेता हूँ, बाद में कर लूँगा. तो ये नहीं करना है ना. ठीक है. मंताशा, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा? गायत्री, शिखा, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? गायत्री हो गया बेटा? हाँ. So can you explain me, sir, how we get the P? I couldn't understand how we get
10 power minus 8. P value. What is P beta? P is equal to magnitude of either charge into separation between the charges, right? Dipole moment. Yes. So magnitude of one charge is given as 1 microcoulomb. Microcoulomb means 1 into 10 to power minus 6. So this is the value for Q. And what is the separation between the charges? Separation between the charges is 1 centimeter. When we convert this 1 centimeter into meter, so that is 1 into 10 to power minus 2. So this is 2a separation. So Q into 2a is 10 to the power minus 8 कूलम मीटर. अभी समझ आया गायत्री? Yes, sir. मंताशा आपको आया समझ बेटा? गायत्री का, शिखा का तो आज नेटवर्क इशू है, सीवियर नेटवर्क इशू है बेचारा. डिस्कनेक्शन कनेक्शन डिस्कनेक्शन कनेक्शन. कोई बात नहीं बेटा, कुछ करो, है ना. अभी तो हाथ बदलेगा हालात. बोलो उन सब से कि नेटवर्क लेके आओ हमारे घर पे, है बेटा. तो 1.8 इंटू 10 टू पावर 5. कितना क्रिएटिव ऐड बना लेते हैं ना यार. मोदी की गारंटी, हाथ बदलेगा हालात. कुछ लोग तो जेल चले जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं. सब चल रहा है. चलो तो बेटा 1.8 इंटू 10 टू पावर 5. ठीक है. अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बताया था आपको, एट एन इक्विटोरियल पॉइंट, है ना. इक्विटोरियल पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसको कैलकुलेट करने से पहले आप एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि वी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. 2 चार्जेस थे, सेपरेशन कितना था बेटा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था. याद करो उस क्वेश्चन को, मैं याद दिला रहा हूँ. एक पॉजिटिव चार्ज था, एक माइनस चार्ज था. ठीक है. हमने क्या किया था, इक्विटोरियल लाइन पे एट ए हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर. याद करो पॉइंट पी हमारा 12 सेंटीमीटर की हाइट पे था. याद है वो क्वेश्चन जिसमें हमने कैलकुलेट किया था इसका लेंथ, जो इधर से दूरी आई थी दैट वाज 13 सेंटीमीटर. और फिर क्या हुआ था कि एक ऊपर साइन कंपोनेंट आया था, एक नीचे साइन कंपोनेंट आया था, दोनों कैंसिल हो गए थे. फिर राइट साइड में क्या बच गए थे, कोस कंपोनेंट्स बच गए थे. ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, दोनों को ऐड करके वी कैलकुलेटेड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. किया था, याद है? अरे तनिष्क याद है? तनिष्क तो आता ही नहीं है, कभी कभी आता है. अरे सर आए होंगे तो याद होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा. ठीक है. तो ये दोनों हमने कैलकुलेट किए थे. ठीक है. एक आया था इस डायरेक्शन में पॉइंटिंग, एक ऊपर पॉइंटिंग आया था, फिर उनके कोस कंपोनेंट्स आ गए थे, वो ऐड हुए थे. तो सिमिलरली हमने वो कर चुके हैं, हम उस क्वेश्चन को कर चुके हैं. वो क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज था, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन पॉइंट विच इज इक्वेटोरियल पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था. तो सेम वही तो है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो ये डाइपोल है. इसकी वजह से हम किसी पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वी वांटेड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उसका केवल फॉर्मूला निकालेंगे. तो अब देखो कैसे करेंगे बेटा इसको. ये हमने कर लिया. नाउ वी विल लुक एट फॉर अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस. ठीक है. इक्वेटोरियल जो लाइन है हमारा, देखो ये सेम डायग्राम है बेटा जो पहले दिखाया था आपको, वही डायग्राम है. देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज प्लस क्यू एंड वन इज माइनस क्यू. दे आर लोकेटेड, ये माइनस क्यू है, दे आर लोकेटेड ऑन ए बी, है ना. ए पे पॉइंट क्यू है और बी पे माइनस क्यू है. मिड पॉइंट इज हाईलाइटेड विद येलो कलर. अबाउट दिस मिड पॉइंट एट हाइट, सम हाइट, पॉइंट पी इज देयर. ठीक है. हाइट हमारा कितना है, आर. एट हाइट ऑफ आर पॉइंट पी इज देयर. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डायपोल एट पॉइंट पी. तो डायपोल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू. अब देखो हमें पता चला कि लेंथ ऑफ द डायपोल इज टेकन एज 2a. तो हाफ लेंथ क्या होगा बेटा, फ्रॉम a टू मिड पॉइंट इट इज a, फ्रॉम मिड पॉइंट टू पॉइंट b इट इज आल्सो a. नाउ वी विल फोकस अवर अटेंशन ऑन दिस ट्राइंगल. जो हमारे पास ट्राइंगल बच गया, इसका बेस इज a एंड हाइट इज r. So can we calculate the hypotenuse? Hypotenuse will be under root of r square plus a square. Yes. R plus A square. So distance of point P from Q is under root r square plus a square. Point P का दूरी Q चार्ज से under root r square plus a square. Similarly point P का distance from minus Q charge will be under root r square plus a square. ठीक है. अब we know the formula for point charge.
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, है ना. So for negative charge it is nothing but bp. B is this point, B is the point here, bp squared. So for negative charge it is bp square, for positive it is ap square, है ना. So we will substitute these values. For negative charge kq upon bp square, and bp is nothing but r square plus a square under root. So r square plus a square का if we take r square plus a square under root and then we can square it, so it will turn out as r square plus a square, है ना. That is the value here. Similarly for positive charge kq upon ap square, we know that ap is also under root r square plus a square, तो यहाँ भी हमने same किया. So we get to know that कि electric field at point P due to minus q is kq upon r square plus a square. Similarly for plus q it is kq upon r square plus a square. ठीक है बेटा. Now vertical components will be sine components, like we have already done in the previous question कि ये sine component EQ sin theta और नीचे वाला ये वाला sine component. These component will be equal in magnitude and opposite in direction, so they will cancel out and become zero. So vertically there won't be any electric field. The only field will be in horizontal direction, and that will be the cosine of these values, E cos theta, E cos theta. Cos theta we will calculate from the triangle. This is the theta value. So cos theta is base upon hypotenuse. So it will be a upon under root r square plus a square. A upon under root r square plus a square. We will substitute the value of cos theta here and then simplify it, and we will arrive at an equation which is E is equal to minus kp upon under root r square plus a square raised to power 3 by 2. So this is the final formula for equatorial point. Write down this formula beta. E is equal to minus kp upon under root r square plus a square raised to power 3 by 2. So this is for equatorial. माइनस का डिनोट कर माइनस साइन डिनोट करता है कि डायरेक्शन, देखो यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटीज है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर बेटा, बताओ. माइनस टू प्लस और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, प्लस टू माइनस, है ना. हाँ क्या समझाया, टू अकोमोडेट फॉर द डायरेक्शंस. ठीक है. तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला नोट डाउन करो, देन वी विल कैलकुलेट, है ना. E इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2. क्वेश्चन में माइनस नहीं लगाना होता ना, किसमें बेटा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना. हाँ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो मत लगाना, बिकॉज माइनस डायरेक्शन की वजह से आ रहा है ना. अगर मैग्नीट्यूड खाली पूछेगा तो मोड लगा दोगे ना दोनों साइड बेटा. वैसे भी अगर आप मैथमेटिकली भी देखो तो मोड लगाओगे तो मोड से तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी खाली, है ना. तो कोई टेंशन नहीं है. माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2. अब यहाँ पर अगर r इज फार ग्रेटर देन a, है ना, तो मान लो 0.5 होता a और r होता आपका 50, तो कितना हो जाता 1% ऑफ 50. 0.5 इज ओनली 1% ऑफ 50, तो फिर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ऐसे केस में. तो देखो क्या किया, फिर हमने a को 0 रखा, तो 0 रखने पे वैल्यू आई माइनस के पी अपॉन आर क्यूब. तो ये फॉर्मूला आपने ये लिख लो कि माइनस के पी अपॉन आर क्यूब आएगा इफ r इज ग्रेटर देन a. दो फॉर्मूला लिखो, फिर क्वेश्चन कराएंगे. ठीक है. तनिष्क इस बार नोटिस करना कि कैन वी नेग्लेक्ट द वैल्यूज और कैन वी डू वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला इटसेल्फ. ठीक है बेटा. नोट डाउन कर लिया गायत्री, मंताशा, हैव यू नोटेड डाउन? माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2. ठीक है. Yes, sir. चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इजाजत दे देंगे, फिर हम आज की क्लास को कंक्लूड कर देंगे. सॉल्व करो, सॉल्व दिस वन. Two charges plus q and minus q are held 1 centimeter apart. Calculate the magnitude of electric field at a point on the equatorial line at a distance of 50 centimeter from the center of the dipole. पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे सब लोग. Just draw the diagram first.
So 1.44 into 10 to power 4. 1.44 into 10 to पावर 4 सही है बेटा आपका आंसर, है ना। अभी बताते हैं आपको। अभी यहाँ पे आपने नेग्लेक्ट किया कि रखा, बताओ। नेग्लेक्ट किया है ना। सर नेगलेक्ट किया क्योंकि ये 2% था बस। हाँ, अरे 2 भी नहीं है, ए वैल्यू तो 1% ही है ना, वन ए इज 0.5 वन पॉइंट है ना बेटा। तो देखो, देयर आर 2 चार्जेस, one is plus 20, another one is minus 20, and they are at a separation of 1 centimeter, और एक पॉइंट है इक्वेटोरियल एक्सिस पे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एट ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है बेटा, 50 सेंटीमीटर्स पे पॉइंट पी लाई करता है। सो दिस इज 50 सेंटीमीटर्स एंड द हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल इज 1 सेंटीमीटर ओनली। यस, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज लिखें तो ए विल कम अप एज 0.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो अब देखो, ए इज ओनली 1% ऑफ 50, a is only 1% of r। क्या करेंगे, we can neglect the value of a in comparison to r। तो हम राइट डाउन करेंगे फॉर्मूला E is equal to माइनस kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। यस बेटा। सो k क्या है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। अगर केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, इफ यू ओनली ट्राई टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, तो लिख देंगे kp अपॉन r क्यूब। हियर k इज 9 इंटू 10 टू पावर 9 SI यूनिट्स में। P क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज विच इज 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम था। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय r क्यूब। r इज 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, ये करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या आएगा बेटा, E इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखो 10 टू पावर माइनस 2 माइनस 6 और प्लस 9 बन जाएगा कितना, 10 बन जाएगा खाली, है ना। तो न्यूमरेटर आएगा आपका 9 इंटू 20 या 9 इंटू 100, 9 इंटू 200, तो कितना आएगा 1800 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 50 इंटू 50 इंटू 50 125 और 000 साथ में। ठीक है, और 10 टू पावर माइनस 6, तो क्या आ जाएगा बेटा 125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। 3 जीरो हटा दिया और 10 की पावर माइनस 6 को माइनस 3 कर दिया। अब देखो क्या होगा, दिस माइनस 3 विल गो टू द न्यूमरेटर, तो आएगा 1800 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 125। नाउ आप 125 को 1800 को 125 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा 14.4 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये आएगा आपका 1.44 इंटू 10 टू द पावर 4, और यूनिट क्या आएगा बेटा, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो 1.44 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये आएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे नेग्लेक्ट क्यों कर दिया बेटा, देखो बिकॉज 50 इज फार ग्रेटर देन 0.5, तो 100 टाइम्स हो गया, 0.5 का 100 टाइम्स हो गया 50। दैट मीन्स कि 1% है खाली, है ना। एरर्स में हमें पता है कि 1 to 2% हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं टू कम अप एट अ क्लोजर। 5-10% होगा तो नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है मंताशा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? मंताशा आ गया समझ? गायत्री Yes, sir. आ गया? ठीक है, तनिष्का आपने तो कर लिया था सॉल्व। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास इसके आगे क्या बचता है, ये आंसर आपका ठीक आ गया। फिर डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये करा देंगे। ठीक है, अभी पढ़ा दूं क्या लेट हो रहा है? आज शिखा का इंटरनेट वीक है तो आज नहीं पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे यार। शिखा इज स्ट्रगलिंग रियली हार्ड, तो 5 ही मिनट लगेंगे इसको पढ़ाने में, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, है ना, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस विल टेक अनदर 15-20 मिनट्स। उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व
गोज लॉ एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, अभी देखो जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा ऑलरेडी एक बार दे चुका हूँ, फिर से शेयर कर दूंगा इसको। यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया कवर, राइट। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, वैल्यूज कितनी होगी, फंडामेंटल चार्ज का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, ऑल दैट। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, इंसुलेटर्स को बाय फ्रिक्शन, कंडक्टर्स को बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन, राइट। आफ्टर दैट कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म हमने कर लिया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वी हैव डन। देन वी हैव सॉल्व्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना, फोर्सेस क्या होगा कि इनका वेक्टर सम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q हमने कर लिया है। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने इनडायरेक्टली कर लिया है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, सम चार्ज पार्टिकल इज देयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड विल बी Q इंटू E, राइट। अब इसका मैग्नेटिक भी आता है, इसका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का सुपर इम्पोजिशन, वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, वहाँ अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, इसके फॉर्मूला आपको बता दूंगा लास्ट दिन। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमने पढ़ लिया, पैटर्न फील्ड लाइंस का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पढ़ाऊंगा मैं, जब कल स्टार्ट करेंगे, फिर गॉस लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग करने वाले हैं। तो आपका स्टार्टिंग का ये सब हो गया है, तो ये यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो, आइदर यूजिंग क्लास नोट्स और दी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब इफ यू हैव एनी डाउट्स तो कम अप विद योर डाउट्स।